Hey guys, so this is the episode 4 of creating something with Claude Code. And if you are new here, my name is Supreet. We are creating a playlist in YouTube with multiple videos. The series is called Everything Claude, and we are basically starting to learn how to use Claude Code by creating applications. So in the last three episodes, I showed you how to use Claude Code for planning your next application. How do you do the styling and prototyping with it? And we have created the styling and prototype and everything is ready now. So in this fourth episode, we are going to start working on the backend part of it, which is writing the APIs, backend database, and everything. And we are assuming that you don't know enough of programming or you are someone who has not done this in the past. So this is a step-by-step guide. If you have not seen the first three videos, which are very long because these are all uncut videos, but my suggestion would be that you go ahead and take a look if you want to get started. So with that summary, let's get started and let's start building our our backend for this. So what I'm going to do today is I am not going to start the existing conversation. I am going to start a new one. So I'm going to start a new session here, and I'm going to first ask it to please read the claude.md file, plan.md file, and styles.md file, and everything about this project so you have a good understanding of where we stand today. So basically what I'm doing is I'm asking it to rebuild the context based on what we have done so far. और इसीलिए हमने क्लॉड एमडी फाइल बनाई थी, प्लान डॉट एमडी फाइल बनाई थी, ताकि हम दूसरे सेशन को जब भी चालू करें, रिमेंबर एवरी न्यू सेशन दैट यू स्टार्ट इन क्लॉड कोड is a different agent, so it is not by default aware of everything that you have done in the different agent. दूसरे चैट विंडो में आपने कुछ काम किया है तो ये वाले चैट विंडो को by default पता नहीं होगा. So best part is how do you share that knowledge? You put that knowledge in some MD files, in some documents within your source code, एंड देन जब दोबारा आप कोई भी नया सेशन चालू करो तो आप इस हिसाब से उसको बोल सकते हो कि भाई आप जाके ये डॉक्यूमेंट पढ़ लो, तो उसके पास सारा कंटेक्स्ट आ जाएगा. तो इसने ये पूरा का पूरा पढ़ लिया है और अब ये बना रहा है कि क्या हो गया है हमारे में और क्या क्या बचा हुआ है. राइट, ओके. सो नाउ इसने सारी चीज़ें पढ़ ली है, तो आई से कि ग्रेट, वी वांट टू यूज़ Supabase as our back end. So let's get started with that. Right, I already have a Supabase account here with me, so what I will do is I will go to my Supabase account, sign in. I think I already have a sign in, so okay, I'll go ahead and 817156, oops, 902496, and then I'm gonna sign in to my Supabase account. It should be done. Okay, I am in Supabase. This is my organization here. So what I'm going to do is I'm going to go ahead and create this new project. ये पुराना project है. I'm going to create a new project here. But let's see what it has to say. It says that allowed to write Supabase. What is this doing? What it is doing? I said that I have the Supabase. So Supabase client it is creating, and it's creating the slug and all. I'll definitely need a project for this. So but let's see कि ये अपने मन से Supabase में जाके प्रोजेक्ट बना देगा या मेरे को मैन्युअली बनाने के लिए बोलता है. तो लेट्स सी कि क्या बोलता है, एंड वी विल डू अकॉर्डिंगली. तो इसने देखो, तो अपने इसने टू डू को अपडेट कर लिया है. अभी एक इसने Supabase क्लाइंट बनाएगा, फिर स्लग जनरेशन का लॉजिक लिखेगा, एपीआई लॉजिक लिखेगा, और सारे लॉजिक जो जो अभी तक इसको लिखना है बैकएंड के लिए वो ये लॉजिक लिखना चालू करेगा. ठीक है. So while it is doing that, I am waiting for it to tell me whether I need a Supabase project to be created by me manually or ये बनाएगा.
So it is creating API route directories. Okay, go ahead. Let it just finish what it is doing, and based on the outcome we will either manually create Supabase project, or I think this guy will write a script and we'll have to run them. We'll see which one it suggests us to go ahead with. Meanwhile, आपने यदि Supabase पे काम नहीं किया है तो Supabase क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक प्राइमर दे देता हूँ. हर एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं, चाहे हम वेब एप्लीकेशन बनाएं या मोबाइल एप्लीकेशन बनाएं, हमको डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना है. वी नीड अ डेटाबेस फॉर इट, राइट. चाहो तो आप फ्री डेटाबेस जैसे कि पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज़ कर सकते हो, या आप MS SQL यूज़ कर सकते हो, या ओरेकल यूज़ कर सकते हो, मोंगो DB यूज़ कर सकते हो, अज्योर का एक है कॉस्मोस DB, वो यूज़ कर सकते हो. बहुत सारे नियो DB आता है, ग्राफ DBs आते हैं, वेक्टर DBs आते हैं. देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन यूज टू सेव योर डेटा इन द डेटाबेस. द थिंग इज कि यदि आप अपना खुद का डेटाबेस यूज़ करते हो तो आपको उसको डिप्लॉय भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, जैसे हम अपनी वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे. I don't want to get into the complexity of all of that. इसीलिए Supabase is a ready-made, ready-to-use backend. It provides me the database देता है मेरे को, APIs देता है मेरे को, authentication authorization देता है मेरे को, social login देता है. तो बहुत सारी जो एक इस तरीके की एप्लीकेशन बना के बेचने के लिए जितनी भी बैकएंड में तामझाम चाहिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में Supabase वो बाय डिफॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करता है. So it's easy for me to go ahead and integrate Supabase and use that rather than to मैं सब कुछ शुरू से बनाऊं, because शुरू से बनाने में obviously टाइम भी ज़्यादा लगता है, and then chances हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर दोगे, यदि एरर आ जाएगी तो फिर परेशानी भी आएगी, राइट. सो बेस्ट इज टू यूज Supabase. शुरुआत में Supabase यूज़ करो. Supabase की मंथली कॉस्ट होती है, बट फ्री प्लान इज ऑल्सो सफिशियंट फॉर यू टू गो अहेड एंड यूज इट. सो इसने अभी क्या किया, इसने सारे के सारे टाइप स्क्रिप्ट चला लिए हैं, सारे के सारे इसने कोड और लॉजिक लिख लिए हैं, इसने लोकल फाइल में एक एनवायरनमेंट वेरिएबल भी बना दिया है. अब ये हमको ये बोल रहा है कि देखो आपको क्या करना है, क्रिएट अ प्रोजेक्ट एट supabase.com और फिर ये वाली SQLs जो इसने दी हैं वो चलाओ, राइट. तो हम जाएंगे Supabase में और हम जाके यहाँ पे बनाएंगे एक नया प्रोजेक्ट जिसका नाम होगा टोकी. हम इसको रखेंगे माइक्रो पे, और हमको अभी डेटाबेस पासवर्ड देने की शायद कोई ज़रूरत नहीं है. मैं दे देता हूँ कोई पासवर्ड बना देता हूँ मैं यहाँ पे. गुड आइडिया टू हैव अ Supabase पासवर्ड. एक्चुअली इसकी जगह मैं इसको बोलता हूँ कि द पासवर्ड इज TokiDB एंड सेव, एंड आई एम गोइंग टू स्टॉप. और मैंने एक ये पासवर्ड बना के यहाँ पे कॉपी कर लिया है. सो व्हाट आई एम डूइंग इन Supabase राइट नाउ, आई एम क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट. कंप्यूट साइज, इसमें अलग अलग कंप्यूट साइज अवेलेबल है कि आपकी एप्लीकेशन को कितना मेमोरी, कितना कंप्यूट चाहिए. देयर इज़ अ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम ऑप्शन अवेलेबल. मेरे लिए माइक्रो इज़ सफिशियंट फॉर दिस. लगभग $10 अ मंथ का खर्चा आएगा यदि ये फुल स्पीड पे चलेगा तो भी, विच इज़ गुड इनफ फॉर मी. डेटा APIs मेरे को इनेबल करनी है. इनेबल ऑटोमेटिक RLS मेरे को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है. एडिशनल कॉस्ट लगभग $10 मिनट आएगी ये, विच इज़ फाइन. अब मैं इसको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करके आई विल क्रिएट दिस प्रोजेक्ट हियर. Okay, now that the project is created, what I am going to do is I am going to copy these SQLs जो हमारे क्लॉड कोड ने हमको बना के दी हैं, and I will go into something called SQL editor here. अभी ये लाइव नहीं हुआ है. I'll have to wait for a couple of minutes for it to go live. जैसे ये लाइव हो जाएगा, हम हमारी जो SQL scripts हमको क्लॉड कोड ने बना के दी हैं वो हम यहाँ पे रन करेंगे, and with that our backend would be ready and hooked with our application. So we'll just wait for a minute or two for it to come back, and then we will go for the next steps. Okay, so after waiting for a while, हमारा Supabase project is now in healthy state, which means it is ready and we can start working on it. So now we will go back to our Claude code, and इसने हमको कुछ scripts बना के दिए हैं. वो स्क्रिप्ट हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे और हम उनको पेस्ट कर देंगे. पेस्ट करके हम उनको चला देंगे यहाँ पे. ये SQL scripts हैं. What they are going to do is they are going to create a table called project with these columns in it, and they are going to create another project, a table called members with these columns in it, and some policies.
So I'll go ahead and I'll run it. It says syntax error और near members line number 1. तो हमने क्या गड़बड़ किया है यहाँ पे, एक एक करके रन करनी पड़ेगी क्या? Run selected, yes. Now I will select this. Run selected, yes. Now I will run these two. एक एक करके कर लेते हैं. इसको सिलेक्ट करते हैं. Run selected, nice. Run selected, very nice. Then एक एक करके कर लेते हैं because I think ये multiple नहीं चला पा रहा है. It should be able to run because सेमीकोलन से हमने बंद किया है, तो it should have identified कि अलग अलग queries हैं. But nonetheless चूँकि अमाउंट नंबर ऑफ क्वेरीज जो हमको यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है वो बहुत कम है, हम मैन्युअली भी एक एक करके भी सिलेक्ट करेंगे. तो हमने सारी चीज़ें अब चला ली हैं. नाउ वी हैव इट ऑल रेडी. We will go to our Claude Code and we'll say copy the project URL and service role key from setting and API and put it into this. So हमारे पास यदि आप देखो तो हमारे पास एक ये env लोकल फाइल है हमारी. कहाँ है env लोकल फाइल? हमारे पास है जहाँ पे हमारे सारे ये है, जहाँ पे मैं अभी क्लिक नहीं कर सकता, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि इसमें मेरी क्लॉड की API कीज़ है. सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि हम जो भी थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज़ करते हैं उनको हमारी एप्लीकेशन से इंटीग्रेट करने के लिए वी नीड समथिंग कॉल्ड API कीज़. API कीज़ कैसे मिलती हैं? जैसे मेरे को यदि क्लॉड में की API कीज़ चाहिए तो मैं क्लॉड में जाऊंगा, क्लॉड डेवलपर्स में जाके एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा और वहाँ पे मेरे को API की जो मिलेगी वो मैं लाके कॉपी पेस्ट कर दूंगा हमारे इस लोकल कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल फाइल के अंदर. ठीक है. सिमिलरली अब हमने सुपरबेस कनेक्ट किया है, तो सुपरबेस से इसने हमको बोला है कि दो चीज़ें चाहिए आपको, प्रोजेक्ट URL चाहिए और सर्विस रोल की चाहिए. तो ये दोनों हम कॉपी करेंगे सुपरबेस से एंड वी विल पुट इट इन हियर इन .env लोकल फाइल विच इज दिस. आई विल डू दिस ऑफलाइन टू सेव दोज कीज फ्रॉम बीइंग विजिबल ऑन दिस अकाउंट ऑन दिस वीडियो. तो लेट मी जस्ट कॉपी दीज टू थिंग्स एंड आई विल गेट बैक टू यू. So I have now done this. I have copied the project URL. मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपको मिलेगी कहाँ सुपरबेस में. So if you come to your Supabase account and if you click on this URL, this is your project URL, unique project URL. तो एक हमको ये कॉपी करना है और दूसरा जब हम सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आप देखोगे there is something called API keys. इस API कीज़ के अंदर जब आप यहाँ पे जाओगे तो यू कैन कॉपी दिस लीगेसी NN कीज फ्रॉम हियर एंड दिस इज समथिंग दैट यू शुड पेस्ट इन योर कॉन्फ़िगरेशन. मेरे को शायद इसको हाइड करना पड़ेगा, मैं ब्लर कर दूंगा उसको. सो दैट इज समथिंग दैट यू गो एंड देन यू पुट इट इन दिस इन env लोकल फाइल विच इज समथिंग दैट वी हैव डन. तो अब हम इसको जाके बोलेंगे क्लॉड कोड को कि भाई वी हैव ऑलरेडी डन. वी क्रिएटेड द Supabase project, executed the SQLs and queries जो आपने दी थी वो हो गई and project URL and एक की role की service role key is copied to .env .local file. सो हम इसको बता रहे हैं कि हमने कर दिया आपने जो जो चीज़ें बोली थी करने के लिए, राइट. सो नाउ व्हाट इट इज़ गोइंग टू डू इज इट इज़ गोइंग टू डू सम टेस्ट. ये एग्जीक्यूट करेगा और वायर अप करेगा सारी चीज़ें कि बेसिकली अभी तक जो हमने बनाया था, तो यदि आपको याद होगा तो हमने डमी कोड लिखा था, डमी प्रोटोटाइप बनाया था जिसमें कि फंक्शनल लग रहा था वो, बट इट वॉज ऑल डमी कोड एंड डमी डेटा. नाउ इट इज़ गोइंग टू राइट एक्चुअल लॉजिक and hook everything with our Supabase in backend. So let it just do that and we will wait for a while again. Once it is done, we will see the changes that it has done, approve them and test it out. We will also write test cases, but perhaps we will do that as part of the next episode. I don't want to do the backend and test cases both into the same series. Alright, so let it complete its to do and then we will meet again once it is done wiring up everything. If I am sharing any new instructions with it, I will resume this video.